Rahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are safe and fine by the grace of Allah Almighty. I'm your teacher Durraiya Asmat Ali Bhatt, and I'm here to deliver your second online lecture. And this lecture is for grade 8, chapter number 1, Human Organ System. In our physical classes and in the first lecture of this online series, we have discussed half of the chapter, that is Human Organ System. And in this video, inshallah, I'll try to cover the remaining half of this chapter. So let's get started. If you remember, in the last video, we were discussing about the structure of nephron and how urine is produced. And on page number 11, you can see the function of kidneys, that how kidney works, किस तरह से किडनी काम करती है, जिसके थ्रू जो प्रॉपर हमारे बॉडी के जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो किस तरह से किडनी के अंदर आते हैं, एंड हाउ किडनी प्रोड्यूसेस यूरिन एंड हाउ इट गोज आउट ऑफ द बॉडी. तो किडनी के मेन फंक्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रहे होंगे कि नेफ्रॉन इसमें मेजर पार्ट प्ले करता है, बिकॉज नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. और इसके अंदर का जो जितना भी मेन इसका जो स्ट्रक्चर था वो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं वो सारे के सारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड इट गोज इनटू द किडनी विद ब्लड. और जो अनक्लीन ब्लड होता है विद ऑल द नाइट्रोजनस वेस्ट, इट गोज इनटू द किडनी, एंड देन किडनी helps in the filtration, and after that the clean blood is again goes back to the body. और जितने भी unfiltered waste materials होते हैं, nitrogenous waste materials होते हैं, that goes into the ureter after filtration of course, and then it goes into the urinary bladder, and then from urinary bladder it goes into outside the body from an opening which is called urethra. And how urine is formed. On your screen you can see a structure of nephron. अगर आपको previous वाला lecture अगर आप याद करें तो आपको पता चलेगा कि इसी किस्म का स्ट्रक्चर आपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से नेफ्रॉन हेल्प करते हैं. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज रेनल कॉर्पसल विच हैज टू मेन पार्ट्स. फर्स्ट वन इज glomerulus, and the outside of it or the covering of it is known as Bowman's capsule. So जितना भी dirty blood means all the blood which contains all the nitrogenous waste or extra waste materials जो blood के अंदर present होते हैं, it goes into the kidney. और kidney के main function के अंदर it goes into the glomerulus. जितना भी unfiltered blood है, with the help of arrows you can see कि कहाँ कहाँ से ये blood move करता है, and you can see that यहाँ से सब ट्यूब्यूल से पास ऑन होने के बाद clean blood is again moving out of the kidney or structure of nephron, and then it goes into our body circulatory system. तो यहाँ पर ये सारे का सारा nephron का structure which is present in the kidneys, it helps in the filtration of the waste materials, and then जितना भी clean blood होता है, सारा blood उसके अंदर से सारे waste materials it goes into the urinary bladder, it goes into the collecting duct, and then it जहाँ पर जो भी चीजें आपके पास collect होती हैं, जो भी fluid आपके पास collect होता है, it is named as urine, and then it goes straight out of the body. On your books, page number 12, the second last topic of your this chapter is the malfunctioning of kidney. Malfunctioning is referred to as the disorders of kidney. कि एक organ हमारी body में present है, तो अल्लाह ताला ने उसको एक proper functioning के अंदर उसको maintain रखा हुआ है. But sometimes कुछ ना कुछ ऐसे disorders हो जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी problems हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो organ है या जो भी specific कोई चीज़ है वो properly function नहीं कर सकती. So we have basically two types of disorders or malfunctioning in kidneys. First one is the kidney stones, which is this picture. You can see कि kidney के अंदर sometimes कुछ ऐसे waste materials जो कि remove out नहीं हो सकते, it gets collected into the kidney. Different points के अंदर collect होते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा accumulate हो जाते हैं, it forms a stone like structure और वो stuck हो जाते हैं, sometimes inside the kidney and sometimes in the ureter or urinary bladder. So इसके दो मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड इज टू ट्रीट किडनी स्टोन्स इज लिथोट्रिप्सी. इट इज रेफर टू एज द लेजर ट्रीटमेंट. लेजर के थ्रू आउटसाइड द बॉडी लेजर जो है वो उसकी बीम थ्रो की जाती है किडनी के ऊपर, एंड इट ब्रेक्स द स्टोन इनसाइड द बॉडी, एंड देन आफ्टर दैट जो भी पेशेंट होता है उसके यूरिन से वो जितने भी वेस्ट मटीरियल्स हैं वो स्टोन्स जो हैं वो ब्रेक होने के बाद इट मूव्स आउट ऑफ द बॉडी. बट समटाइम्स ऐसा होता है कि किडनी स्टोन्स बहुत ज़्यादा enlarge हो जाते हैं और they cannot be treated with the lithotripsy. So the last
थिंग दैट वी कैन डू विद दैट इज कि हम सर्जरी के थ्रू किडनी स्टोन्स को रिमूव कर सकते हैं. इट्स अ पेनफुल प्रोसेस, लेकिन इसको ट्रीट किया जा सकता है बजाय इसके कि इसके लिए हम फील करें कि ये अनट्रीटेबल है. इट इज ट्रीटेबल. इसको 2 मेथड्स के थ्रू हम ट्रीट कर सकते हैं. सेकेंड, जो माल फंक्शनिंग है किडनी की, दैट इज रेनल फेलियर. इसके 2-3 तरह के पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से किडनी फेलियर समटाइम्स अकर्स, which is which are infections or maybe diabetes or hypertension. जो भी ऐसे पेशेंट्स हैं, ऐसे लोग हैं जिनको इस किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं, their kidney gets affected and after that their kidneys don't work properly and उसके लिए उनको फिर प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है, नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट्स है हम देखेंगे, उसको उनको कैरी करना पड़ता है बिकॉज वो किडनी उनकी फेलियर की तरफ चली जाती है, किडनी फेल हो जाती है एंड प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकती. On your books, on page number 13, we have two different types of treatments for the malfunctioning of kidneys. सबसे पहली तो डायलिसिस है. स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वर्क करता है. आपने सुना भी होगा इसके बारे में कि इन दैट वी यूज अ मशीन विच इज नोन एज डायलाइजर. अगर आप अपने माइंड में फिल्टर लेकर आए जिससे हम अपना पानी फिल्टर करते हैं, सो आपको ज़्यादा प्रॉपरली उस चीज़ की समझ आएगी कि किस तरह से एक किस तरह से अनक्लीन वाटर उसके अंदर से क्रॉस होता है. एंड देन आफ्टर दैट जब हम अपने टैप से जो पानी ले रहे होते हैं उसमें किसी किस्म की भी कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होती. जस्ट लाइक दैट आप देख सकते हैं कि एक पेशेंट है एंड 2 टाइप्स ऑफ ट्यूब्यूल्स आर अटैच्ड टू हिज आर्म. एक तरफ से जो ब्लड है वो थोड़ा थोड़ा करके रिमूव होता है जो कि अनक्लीन ब्लड है. ये ऐसे पेशेंट्स के लिए ये डायलिसिस का प्रोसेस होता है जो कि अपना जिनकी किडनीज प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकती. सो दिस इज द आर्टिफिशियल मेथड जो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में नेचुरली फिट किया है. इसको हम कैरी करते हैं आर्टिफिशियली जिनकी किडनीज प्रॉपरली वर्क नहीं करती. तो एक ट्यूब्यूल से आहिस्ता आहिस्ता करके अनक्लीन ब्लड आता है और वो एक मशीन है विच इज़ नोन एज डायलाइजर. उसके अंदर डिफरेंट तरह के फ्लूइड्स होते हैं जिनके अंदर से ब्लड गुजरता है और जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल्स हैं वो सारे इसके ऊपर स्टक हो जाते हैं. एंड आफ्टर दैट द clean blood is moved out from another tubule and it goes into the arm of the person again. तो जो बॉडी के अंदर जो ब्लड रिटर्न हो रहा होता है दैट इज द क्लीन वन, और जो एक ट्यूब से जो बाहर आ रहा है वो अनक्लीन है. और इस तरह से इस साइकिल के थ्रू ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है और ये एक आर्टिफिशियल मेथड है टू ट्रीट और टू क्लीन द ब्लड artificially, which is known as dialysis, and the machine which we use is known as dialyzer. The last step is kidney transplant. In this method, kidney is donated by a healthy person and is grafted into the body of a patient. जो बहुत ज़्यादा critical condition हो जाती है जब किसी किस्म का भी कोई भी process work नहीं करता, then the last option we have is kidney transplant, जिसमें surgery के through एक healthy person की kidney जो कोई donate करता है उसको लिया जाता है and it is grafted into the body of the patient और फिर वो properly इसकी body के अंदर function करना शुरू कर देती है. This is it for today. We have successfully covered our first chapter of this book, and I will share the pictures of the exercise and you have to write the short questions of the exercise on copies, and for the long questions you have to mark it on your books and you have to learn the long questions as well. And if you have any questions, feel free to ask. Till then, take care. Allah Hafiz.